Hello everyone, I am Dr. Richa Upadhyay, Assistant Professor in the Department of Botany, MBPG College Dadri, GB Nagar. Today I am going to describe about an important cellular organelle known as a mitochondria. The mitochondria are a hollow sac-like structure present in the cytoplasm of almost all eukaryotic cells, except mature RBCs of mammals and sieve tubes of phloem. The mitochondria were first time reported in the striated muscles of insects by Colliker, but the actual credit of discovery goes to Fleming and Altman. The number of mitochondria varies from single to several thousand. The mitochondria is normally present in higher number in those organs which are very highly active. As you know, about 70% of all the cellular enzymes, all 70% of all the cellular enzymes are present alone in the mitochondria. It indicates that mitochondria are highly active organelle of the cell. Therefore, the number of mitochondria is higher in those organs which are very highly active, and its size varies from 3 to 5 micron in length and zero point 0.2 to 2 micron in diameter, and it possesses proteins, phospholipids, a small amount of DNA and RNA. Mitochondria is a unique organelle because it possesses its own DNA molecule like nucleus. Therefore, mitochondria is also known as a semi-autonomous organelle. Semi-autonomous means they are not dependent on nucleus for all of its activities because they possess their own DNA. Therefore, they are not totally dependent on only nuclear DNA for their activities. They can perform their activity by itself. Now, the ultra structure of mitochondria. As you can see here in the diagram, the mitochondria is the hollow membranous structure. आप ऐसा देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया में ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन्स और एक इनर मेम्ब्रेन्स। तो आउटर मेम्ब्रेन्स इज स्मूथ इन आउटलाइन एंड इट इज परमिएबल बिकॉज इट पजेस इंटीग्रल प्रोटीन कॉल्ड पोरीन। जो आउटर मेम्ब्रेन्स होता है इसकी आउटलाइन स्मूथ होती है और इसमें पोरीन प्रोटीन होने के कारण ये परमिएबल होती है, इससे मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, सर्टेन आयंस का मूवमेंट पॉसिबल होता है। बट जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स होती है वो हाईली इम्परमिएबल होती है, और इससे किसी सब्सटेंस या मटेरियल या मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैरियर या चैनल की ज़रूरत होती है। इससे कोई भी मॉलिक्यूल डायरेक्टली नहीं परमेट कर सकता है, एंड इट इज़ हाईली इम्परमिएबल टू प्रोटॉन्स। And as I told you, due to presence of DNA and ribosome, the mitochondria are semi-autonomous in nature. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है डीएनए का जो फंक्शन होता है, जो भी एक्टिविटी होती है या जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी प्रोसेस होता है सेल के अंदर, वो मोस्टली डीएनए से रेगुलेट होता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, बट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिनके अंदर भी डीएनए पाया जाता है, जिसे ऑर्गेनेल जीनोम भी बोलते हैं। और ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे होते हैं। और राइबोसोम का क्या है? दैट इज अ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। सो बिकॉज mitochondria possess both DNA and ribosome in their matrix. Therefore, it is semi-autonomous in nature. Semi means half, autonomous means independent, self-dependent. ये अपनी आधा फंक्शनिंग
फंक्शनिंग, इसकी अपनी हाफ फंक्शनिंग के लिए ये खुद ही कैपेबल होता है और ये दूसरे ऑर्गेनेल पे डिपेंडेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए होता है और इसका अपना खुद का राइबोसोम होता है। तो कैसा माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा स्ट्रक्चर है, इसका आउटर मेम्ब्रेन्स है और इनर मेम्ब्रेन्स है। आउटर मेम्ब्रेन्स तो बिल्कुल स्मूथ आउटलाइन होती है, बट इनर मेम्ब्रेन्स में बहुत सी इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं, जिसे कि क्रिस्टी बोलते हैं। एज यू कैन सी, दिस इज क्रिस्टी, दिस इज द cristae, and on the surface of this cristae there are present small molecules called ऑक्सीजोम्स और F0 F1 एटीपीएज। आप ऐसा देख सकते हो, ये ब्राउन कलर के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इसका ये स्टाक है और ये इसका ये हेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे ऑक्सीजोम या F0 F1 एटीपीएज होते हैं। और इस ऑक्सीजोम का एटीपी के सिंथेसिस में रोल होता है। एज यू नो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ सेल because because energy is stored in the form of ATP in the माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कहाँ स्टोर होती है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो उस एटीपी की सिंथेसिस कहाँ होती है? ऑन द सरफेस ऑफ दिस ऑक्सीजोम्स। I already explained about outer and inner membranes. Now क्रिस्टी एंड ऑक्सीजोम, मैंने क्रिस्टी के बारे में भी और ऑक्सीजोम के बारे में भी बताया है कि क्रिस्टी के ऊपर ये ऑक्सीजोम पाए जाते हैं और इनका रोल होता है एटीपी की सिंथेसिस में। ये ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल इसके हेड, ये स्टॉक और बेस होते हैं। हेड F1 प्रोटीन से बना होता है या F1 सब यूनिट्स होते हैं, और बेस में जो है F0 सब यूनिट होती है। Now, oxidative phosphorylation. The process of ATP synthesis in the mitochondria is known as oxidative phosphorylation. जो ATP सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, बिकॉज इसमें सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी की सिंथेसिस होती है। इसमें सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं? इट मे बी NADH, इट मे बी FADH, and these substrates are oxidized and ATP is synthesized। और ये दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई भी एक प्रोसेस नहीं होगा, अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो फॉस्फोरिलेशन मींस एटीपी की सिंथेसिस। एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है? एडीपी में ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऐसा आप यहाँ देख सकते हो। कैसे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस एडीपी पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन होता है और फिर एटीपी की सिंथेसिस होती है। और इस प्रोसेस में कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है? NADH और FADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। NADH इज कन्वर्टेड टू NAD प्लस, और ये प्रोटॉन रिलीज हो रही है। अब ये प्रोटॉन यहाँ से होकर के इनर मेम्ब्रेन्स से होकर के डिफरेंट चैनल से बाहर इंटर इनर मेम्ब्रेन्स मैट्रिक्स में जाएगी। इसके कारण यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है। जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या होता है? अगर दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल का कंसंट्रेशन एक तरफ मेम्ब्रेन्स के एक तरफ ज्यादा हो और एक तरफ कम हो, तो इस चार्ज डिफरेंस के कारण यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है, एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। और यहाँ पे क्योंकि ये प्रोटॉन आयन है, इसलिए इस फोर्स को प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं, जो कि ये डिफरेंट प्रोटॉन की कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण हो रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम है। अब जब ये प्रोटॉन उस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के कारण यहाँ पे री एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो उसी एनर्जी के कारण यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ oxidative phosphorylation, because here substrate is oxidized, oxygen is consumed in the process, and water is released and ATP is synthesized। ये क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन्स है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इनर मेम्ब्रेन्स है। ये इनर मेम्ब्रेन्स के ऊपर कई सारे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये एटीपी सिंथेज जो मैंने आपको बताया, यहीं पे ये एटीपी सिंथेज एंजाइम है यहाँ पे।
और यही यहाँ ये डिफरेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी प्रेजेंट है इसी के मेम्ब्रेन्स के सरफेस के ऊपर। और इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो एटीपी की सिंथेसिस होती है, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द cell. I think you must be clear about this process of oxidative phosphorylation and ATP synthesis. नाउ ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हाउ माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेटेड, ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसे हुई। तो इसको मानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन है वो बैक्टीरियल एंडोसिम्बियोसिस के कारण है। मींस कोई बैक्टीरियल सेल जो कि एरोबिक बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया होती है वो उसमें रिस्पिरेशन का प्रोसेस वो खुद से कर लेते हैं रिस्पिरेशन का। तो ऐसे बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर करके फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए। ऐसा आप जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, दिस इज शोइंग द ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियस। ये प्रोटो यूकैरियोट है। प्रोटो यूकैरियोट मीन्स प्रिमिटिव यूकैरियोट है। इसकी ओरिजिन किससे हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल से हो रही है। अब ये आपको जैसा मैंने बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन्स बाउंड नहीं प्रेजेंट होता है। उसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, राइबोसोम्स होते हैं, और उनका अपना एक न्यूक्लियोइड या जीनोम डीएनए पाया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग्स के कारण यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स की ओरिजिन होती है। अब इसके अंदर ऐसा बैक्टीरिया जो कि एरोबिक बैक्टीरिया है, इसकी एंट्री होने के कारण यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन होती है। और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की एंट्री के कारण यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बियॉन्ट्स ऑफ द सेल। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम होता है, ऐसा बैक्टीरिया के पास भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होते हैं बाइनरी फिजन के प्रोसेस से, और बैक्टीरियल सेल भी बाइनरी फिजन से डिवाइड होती है। और and the outer membranes of the mitochondria resemble with the membranes of bacteria। जैसा कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स के सरफेस पे पोरीन प्रोटीन पाई जाती है, उसी तरह बैक्टीरिया के सरफेस पे भी पोरीन प्रोटीन पाए जाते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन है वो बैक्टीरिया से हुई है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और किस तरीके के बैक्टीरिया से हुई है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिसमें रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, उनसे माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हुई है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, साइट ऑफ सेलुलर वो ऑक्सीजन का इनटेक होता है और वाटर रिलीज होता है। वो प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मैंने आपको समझाया। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इनटेक हो रहा है, ये ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है वाटर में। तो फोटोसिन और ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन का इनटेक और वाटर का रिलीज या CO2 का रिलीज आप जानते होंगे कि O2 लेके CO2 को रिलीज करते हैं। तो बेसिकली इस प्रोसेस में यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल में। तो mitochondria are the sites of cellular respiration, and the most well known role of the mitochondria is in the production of ATP। वो भी मैंने आपको बताया कि ATP की सिंथेसिस कैसे होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू ATP की सिंथेसिस होती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जितने भी सेल के अंदर एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स किसी चीज, किसी मॉलिक्यूल का या किसी सब्सटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है, उसे एनाबॉलिज्म बोलते हैं। एंड कैटाबॉलिज्म इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस। तो जितने भी एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, सब में
माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका कैसा फंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है, जिसकी वजह से इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, इसके ऊपर पोरीन प्रोटीन होती है। इनर मेम्ब्रेन्स में इनफोल्डिंग्स होती हैं, जिससे कि क्रिस्टी बोलते हैं। इस क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीजोन्स पाए जाते हैं, और इनर मेम्ब्रेन्स के सरफेस पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट तरीके की प्रोटीन्स होती हैं। और इनर मेम्ब्रेन्स बिल्कुल हाईली इम्परमेएबल होती है प्रोटॉन के लिए। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, वो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी विद द ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन, लाइक एनएडीएच या एफएडीएच, जो भी सबस्ट्रेट है, इनका ऑक्सीडेशन होता है, और इस प्रोसेस में एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन है, वो बैक्टीरिया से, एरोबिक बैक्टीरियम से मानी जाती है, कि जो एरोबिक बैक्टीरियम थे वो यूकेरियोटिक एंसेस्टर के अंदर एंटर किए, और वो फिर कन्वर्ट हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके लिए एविडेंस क्या है? बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ सिमिलरिटी। एंड इसके फंक्शन यही है, मेन फंक्शन है इसका, रिस्पिरेशन में रोल है, और इसका प्रोडक्शन ऑफ एटीपी में रोल है, एंड इट रेगुलेट्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म। नाउ, thank you. For any query, any confusion, you can get back to me through my channel.